Welcome to this lecture on nuclear physics. Today we will first discuss atomic mass unit, then we will discuss also electron volt, then we will see what is the energy equivalent of this atomic mass unit. After that we will discuss size of the nucleus, nuclear density and nuclear forces. Now first let us discuss atomic mass unit. This atomic mass unit is a unit used for measuring nuclear mass. Atomic mass unit is the unit which is used for measuring the nuclear mass, or we can with the help of this atomic mass unit we can measure the mass of proton, mass of electron, mass of neutron. So in nuclear physics, for measuring the nuclear masses we have a unit, and that unit is called as atomic mass unit. Let us first define what is this atomic mass unit. One atomic mass unit, AMU, atomic mass unit, is defined as or is equal to 1/12th mass of one atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप. जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है बराबर 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. We have so many isotopes of carbon. One of the isotope is C12 isotope, carbon 12 isotope. So एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. चूंकि C12 आइसोटोप में बड़े सारे एटम्स होंगे, तो हमें पहले निकालना है इस C12 आइसोटोप के एक एटम की मास. What will be the mass of one atom of carbon 12 isotope? So in order to find this one atomic mass unit, we have to first calculate mass of one atom of C12 isotope. See how we will calculate the mass of one atom of C12 isotope. Suppose we have a substance here. यहां पर हमारे पास एक सब्सटेंस है. सपोज इस सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है, सपोज दैट इज A. सपोज द एटॉमिक वेट ऑफ दिस सब्सटेंस इज A. से A. नाउ अगर इस सब्सटेंस का मुझे एक पार्ट है, सपोज दिस इज वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, अगर इस पार्ट का मास होगा बराबर atomic weight of this substance in grams, then this part of substance, this is called 1 mole of substance. 1 mole of substance. एक substance का जो 1 मोल होता है वो होता है उस substance का वो part जिसका mass in grams होगा बराबर what atomic weight of the substance. हम ऐसे कहेंगे 1 mole of substance is that part of a substance which has mass in grams, equal to atomic weight of substance. लिहाजा mass of 1 mole of C12 isotope हो गया बराबर उस mass of 1 mole of C12 isotope हो गया C12 isotope का वो पार्ट जिसका mass in grams होगा बराबर what atomic weight of C12 isotope. तो हम यहां ऐसे लिखेंगे mass of 1 mole of carbon 12 isotope, mass of 1 mole of carbon 12 isotope वो हो गया 12 grams. चूंकि इसका एटॉमिक वेट 12 है तो 1 मोल इस C12 का वो पार्ट है जिसका मास इन ग्राम्स होगा इसके किसके बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर. तो मैं ऐसे लिखूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 ग्राम्स. ठीक है ना. नाउ आपको पता है जो 1 मोल है इसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.023 into 10⁻23 एटम्स. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल के बदले में लिखूंगा ऐसे 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 ग्राम्स. चूंकि 1 मोल जो होता है वो होता है 6.023 into 10⁻23 एटम्स. लिहाजा मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स
of carbon isotope is equal to 12 grams. अब इसी से हम एक एटम का निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे mass of one atom of C12 isotope, mass of one atom of C12 isotope is equal to 12 grams divided by 6.023 into 10 raised to power 23. यानी जब भी आपको किसी एटम का, जब भी आपको किसी एलिमेंट का, जब भी आपको किसी एलिमेंट का क्या निकालना है, किसी एलिमेंट की एक एटम का मास निकालना होगा, जब भी आपको किसी सब्सटेंस या किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना होगा, तो आपको क्या लिखना है, आपको उस एटम, उस एलिमेंट या उस सब्सटेंस का मास, एटॉमिक वेट जो है वो लिखना है इन ग्राम्स, तो डिवाइड करना है किसके, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। हम ऐसे लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहां से ये उठाओ और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको 1 AMU निकलेगा, निकलेगा ना। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप निकला आपको 12 grams divided by 6.023 into 10 raised to power 23. Let us substitute this in this equation. What we get? We get 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to 1 by 12 into mass of one atom of C12 isotope. वो किसके बराबर निकला, बताओ जल्दी। वो निकला 12 grams divided by 6.023 into 10 raised to power 23. This 12 and this 12 cancels, तो आपको 1 AMU जो है, 1 AMU आपको निकलेगा 1 divided by 6.023, ये जो 10 raised to power 23 है इसको ऊपर लेंगे, into 10 raised to power minus 23 grams, 10 raised to power minus 23 grams। तो डिवाइड करो 1 AMU को, 1 को डिवाइड करो 6.023 से, कितना आएगा शाबाश, ये निकलेगा 1 AMU इज इक्वल टू, कितना कैलकुलेट किया आपने, 0.166 into 10 raised to power, शाबाश, into 10 raised to power minus 23 grams। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इस 1 को यहां लाऊंगा, 1 को यहां लाऊंगा, जब मुझे डेसिमल यहां लेना होगा, यहां इसकी तरफ लेना होगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड भी करना है, तो ये बनेगा ऐसे 1 AMU इज इक्वल टू, शाबाश, ये बनेगा 0.166 into 10 raised to power minus 23 divided by 10। जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 1.6, तो आपका 1 AMU जो है ये निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा 1.66 into ये 10 जो है, ये 10 ये ऊपर जाएगा, ऊपर बन के ये बनेगा 10 raised to power minus 24 grams। ये बनेगा 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये है AMU in grams, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24, ठीक है, into 1 gram। 1 ग्राम आपको पता है वो है 10 raised to power minus 3 kg। तो आपका 1 AMU जो है, 1 AMU आपका निकलेगा 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 10 raised to power minus 3 kg। इसका मतलब है जो आपका 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो निकलेगा 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg। This is the relation between AMU and kilogram। 1 AMU किसके बराबर होता है, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। 1 AMU होता है बराबर 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg। In terms of gram, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 kg। कैसे निकालना आपने 1 AMU, आपने देखा 1 AMU होता है 1/12 mass of 1 atom of carbon isotope। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप इन ग्राम्स, दैट्स 12 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का मास निकाला आपने C12 आइसोटोप में, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपको निकला 1 AMU इन ग्राम्स, ठीक है ना। बाद में ग्राम को किया आपने किसमें कन्वर्ट, किलोग्राम में, एंड यू गेट दिस। नाउ लेट अस मूव अहेड। हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम यूज करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, दैट इज
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ईवी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो बच्चों, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पर सपोज हमारे पास यहां एक कंडक्टर है। सपोज इस कंडक्टर के एंड्स जो है वो मैंने कनेक्ट किए एक बैटरी को। बैटरी से मैं क्या करूंगा काम, जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर है इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकता हूं। एक कंडक्टर को जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, व्हाट हैपेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ओकर्स बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। एक एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। दूसरे एंड पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। से इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल। एज ए रिजल्ट ये जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गई। नाउ इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से व्हाट हैपेंस, यहां पर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। Now, when the ends of a conductor they are connected to the battery, what happens? A potential difference is set up across the ends of a conductor. Due to this potential difference, what happens? An electric field is developed. Now, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है वो माइनस ई होती है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो होता है F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी F होता है बराबर क्यू नॉट इंटू ई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्जेस होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस पे क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई, यहां क्यू नॉट के बदले है माइनस ई। व्हाट इज माइनस ई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड एज पर दिस रिलेशन दैट फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ई ई। अब फोर्स का क्या काम है, फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट करेगा, फोर्स चार्ज की वेलोसिटी बढ़ाएगा। यानी ये जो फोर्स यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एक्सर्ट किया इस इलेक्ट्रॉन पे, दिस फोर्स विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। When the electron will accelerate, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इन अदर वर्ड्स इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to it, or when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। हम ऐसे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर होता है वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन ने गेन की जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करेंगे बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम यहां पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर को अप्लाई करेंगे, इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी को हम कहते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इट इज व्हाट इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है, शाबाश, एनर्जी जो किसने गेन की, इलेक्ट्रॉन ने। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ऐसे बताएंगे सीधे आप, 1 electron volt is the energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। क्योंकि जूल जो है वो भी है यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी है यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। देखो बच्चों,
आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव, ठीक है ना। नाउ वर्क डन होता है एनर्जी गेन, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी गेन, या सीधे लिखेंगे एनर्जी, वर्क होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आपका एनर्जी जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनर्जी होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है ना। मगर पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क है एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एनर्जी बाय चार्ज। तो एनर्जी किसके बराबर है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चार्ज कौन सी लेते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हियर चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। क्यों? यहां पर जो हमारी चार्ज है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेंगे 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कितना लेंगे? 1 वोल्ट, शाबाश। एनर्जी जो है एनर्जी को हम लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर लगाओ भाई, यहां पर लगाओ। एनर्जी के बदले में लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज के बदले लिखूंगा मैं 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बदले में लिखूंगा 1 वोल्ट, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। चार्ज के बदले मैंने क्या लिखा? 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बदले क्या लिखा मैंने? 1 वोल्ट। तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बन गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम वोल्ट। यहां देखो कूलम वोल्ट, वर्क है बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है। तो कूलम वोल्ट जो होता है वो होता है जूल, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स। ये आपको निकली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। यहां देखो, जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना होगा जूल में, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से। अब अगर रिवर्स में आपको जूल कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो है ये फिर डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 जूल्स। अगर वापस जूल निकालना होगा, जूल को कन्वर्ट करना होगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power -19 electron volt. So in order to convert joule into electron volt, you have to divide the amount by what? 1.6 into 10 raised to power -19. अब एक और बिगर यूनिट है, that's called as million electron volt. Million electron volt. Million electron volt. Million electron volt. उसको हम डिनोट करते हैं MEV से, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बड़ी जगह ये भी इस्तेमाल किया गया होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों, मिलियन हो गया 10 रेज टू पावर 6। मिलियन क्या होता है? 10 रेज टू पावर 6। मैं ऐसे लिखूंगा 1 MeV। 1 MeV, M किसके बराबर था? 10 रेज टू पावर 6। ये हो गया 10 रेज टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि 1 M होता है 10 रेज पावर 6। अगर स्मॉल m होगा, स्मॉल MEV, वो क्या होता है? वो होता है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, ये कैपिटल M है, तो वहां डिफरेंस कभी कभी वो लिखा होगा स्मॉल m, तो आप लगाएंगे 10 रेज पावर 6, वो रॉन्ग है क्योंकि वो है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम ऐसे लिखेंगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई फर्क? 10 रेज पावर 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 6 इंटू शाबाश 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स। यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जूल्स। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जूल्स।
जब आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। अगर जूल कन्वर्ट करना होगा तो आपको डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल से। ठीक है ना? चलिए आगे जाते हैं। मील बस है गोरा, ये अच्छा मील बस हो यार, आत्मा का खराबी। सो हमने देखा भी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट्स इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। बिल्कुल इसी रिलेशन पे अभी नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आया था? शाबाश, जरा क्वेश्चन पढ़ो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक one bond in DNA, to break one bond in DNA, to break one bond in DNA is, shabash, is 10⁻⁻20 joules. Write it, express it in electron volt. Express it in electron volt. Express it in electron volt. देखो नीट 2020 में कैसा इजी क्वेश्चन आया था अभी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज कितना? 10⁻⁻20 जूल्स। हमें इसको किस में लिखना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यार, सिंपली एनर्जी दिया गया है 10⁻⁻20 जूल्स। मुझे जूल कन्वर्ट करना है किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, E is equal to 10⁻⁻20 into 1 जूल। 1 जूल में यहां से निकालूंगा, 1 जूल हो गया 1 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना? तो ये ऐसे बनेगा, E is equal to 10⁻⁻20 into 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब हमें जूल करना कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो हमें डिवाइड करना है 1.6 into 10⁻⁻19 से। ये ऐसे बनेगा, E is equal to 1 divided by 1.6 into 10⁻, शाबाश, 10⁻⁻20 into 10⁻⁻19 प्लस 90। ठीक है? ये बनेगा E is equal to, ऐसे देखो, 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻1। ठीक है? ये ऐसे बनेगा, E is equal to 1 divided by 16 divided by 10 into 10⁻⁻1। ये 10 जो है ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा E is equal to 1/16 into 10⁻0। चूंकि ये 10 ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से 10⁻1 बनेगा और बेसदार सेम पावर्स आर एडेड, दिस विल बिकम 10⁻0। 1 को डिवाइड करो भाई, 1 को डिवाइड करो 16 से, यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर 0 आएगा, तो यहां 2 0 आएंगे, है ना? 16 6000 कितना हो गया? शाबाश, 16 6000 कितना हो गया? 96। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? यही आया ना, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल आया था, इसको डिवाइड करना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपको आंसर आएगा E is equal to 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2020। नाउ आगे हम जाएंगे, आगे हम बच्चों जाएंगे आज, यहां पर हम देखेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, बहुत जरूरी रिलेशन है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU, या हम दिखाएंगे इसको, या हम इसको बोलेंगे ऐसे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड AMU। AMU जो है दैट्स ए यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मास, दैट्स ए यूनिट ऑफ मास, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी हमें रिलेशन निकालने हैं यूनिट ऑफ एनर्जी और यूनिट ऑफ मास के दरमियान। तो मैंने यहां हेडिंग लिखी, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU। आपको पता है जो मास और एनर्जी है, they are convertible into each other. We can convert mass into energy, we can convert energy into mass. मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस हम एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में। इसके लिए
एक फेमस रिलेशन दे दी हमारे आइंस्टाइन ने, एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय E is equal to mc square. With the help of this relation, we can convert mass into energy and we can also convert energy into mass. मास को हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से तो आपको एनर्जी निकलेगी, या एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से तो आपको क्या निकलेगी? मास. With the help of this equation, we are able to convert a mass into energy or we are able to convert energy into mass. तो यहाँ पर हमें AMU जो है इसको कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है? एनर्जी में. ठीक है ना? यहां देखो, हियर जो आपका M है दैट इज 1 AMU, जो आपका मास है दैट इज 1 AMU, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट AMU इनटू व्हाट? मास इनटू एनर्जी. AMU इनटू एनर्जी. हमें दिखाना है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU. इस 1 AMU का कितना एनर्जी इक्विवेलेंट होगा? ठीक है ना? हाउ मच एनर्जी वी कैन गेट फ्रॉम 1 AMU, वो देखना है. M जो है वो है 1 AMU. 1 AMU आपको बाबा पता है वो है 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. ठीक है ना? C जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो होता है 3 into 10 raised to power 8 meters per second. ठीक है? इस इक्वेशन में दे दो, ये निकलेगा E is equal to मास का दे दो शाबाश 1.66 into 10 raised to power minus 27 into speed कितनी है शाबाश? 3 into 10 raised to power 8 का होल स्क्वायर. क्योंकि यहां देखो मास आपका केजीज में है और आपका जो स्पीड है दैट इज इन मीटर्स पर सेकंड. दोनों का यूनिट जो है वो किस में है? दैट इज इन व्हाट? दैट इज इन SI. ठीक है ना? तो SI सिस्टम में जो यूनिट ऑफ एनर्जी होगा वो होगा जूल. तो ये आपको जूल निकला. ठीक है ना? क्योंकि मास जो है वो केजीज में है, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों मास और स्पीड का यूनिट जो है वो SI सिस्टम में है. और एनर्जी, किसी भी एनर्जी, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी है, चाहे सोलर एनर्जी है, चाहे साउंड एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हर एक एनर्जी के लिए SI यूनिट में एक ही यूनिट है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज जूल. SI सिस्टम में एक यूनिट है, दैट इज जूल. देखिए, चलिए आगे चलिए. दिस इज E is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 into 3 3 हो गया 9. ठीक है ना? into 10 raised to power 16. ठीक है बच्चा? ठीक है ना? ये बनेगा E is equal to 1.66 into शाबाश into 9 into 10 raised to power minus 11. ठीक है ना? क्योंकि 27 में से 16 काटा तो वहां 11 रहा. ठीक, मल्टीप्लाई करो भाई. ये बनेगा E is equal to 9 6s are 54, 5 आपके कैरी आ गए, 9 6s are 54, 54 प्लस कितना हो गया? 59, 5 कैरी ऑन, 9 1s are 9. क्या आएगा? 14.94 into 10 raised to power minus 11. यहां पर हम काम करेंगे, इस पॉइंट को हम यहां लेंगे. जब पॉइंट को यहां लेते हैं, पॉइंट को यहां लेना हमें होगा, तो उस वक्त हम क्या करते हैं शाबाश? हम मल्टीप्लाई करते हैं ना? नहीं, हम क्या? हम डिवाइड करेंगे. यहां पर डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे. ठीक है? मैं ऐसे लिखूंगा इसको. E is equal to 14.94 into 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 10. कोई फर्क? 10 plus 1 कितना हो गया? 11 minus 11. ये ऐसे आएगा. ये बनेगा E is equal to 14.94. इस 10 को नीचे लाएंगे, ये बनेगा डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 raised to power minus 1 जो नीचे लिया ये बन गया 10 into 10 raised to power minus 10 जूल्स इसके साथ चलाओ, जूल्स. तो ये बन गया E is equal to, पॉइंट यहां आएगा, ये बनेगा 1.494 into 10 raised to power minus 10 जूल्स. ठीक है ना? 10 raised to power minus 10 जूल्स. हमें रिलेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसके दरमियान? AMU में. हम इसको ऐसे लिखेंगे. देखो, इस जूल को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो, आपको पता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 into 10 raised to power minus 13 जूल्स. ठीक है? 10 raised to power minus 13 जूल्स.
अब 1 जूल जो होगा वो होगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। जब आपको जूल को कन्वर्ट करना होगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। तो ये बनेगा E इज इक्वल टू एनर्जी ऐसे बनेगी 1.494 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। यहां देखो, जब आप 10⁻⁻13 ऊपर लेंगे, ठीक है ना, ऊपर लेंगे, ये बनेगा आपको ऐसे E इज इक्वल टू शाबाश 1.494 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻³ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि आपने जूल को किस में कन्वर्ट किया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको एनर्जी ऐसे निकलेगी 0.931 इंटू 10⁻³ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 1.494 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आपको आएगा 0.931, ठीक है ना। ये ऐसे बनेगा E इज इक्वल टू 931 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻³ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1000 खत्म हो गया, तो आपको एनर्जी जो निकली वो निकली 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो 1 AMU है, इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां देखो, तो आपको 1 दिस एम्प्लाइज आपको 1 AMU निकला बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। जरा 2 AMU किसके बराबर होगा, वो होगा 2 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 AMU कितना होगा, 3 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M AMU किसके बराबर होगा, वो होगा डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। जरा क्वेश्चन बताओ आप मारिया, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन भी कल मैंने कराया ना। व्हाट वाज द क्वेश्चन? आप पढ़ो क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, शाबाश बोलो क्या है वो, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, शाबाश, एनर्जी, कोई पढ़ रहा पीछे, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, 0.5 ग्राम इज, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम इज। देखो बहुत इजी, यही रिलेशन लगानी है, यही रिलेशन लगानी है। देखो E किसके बराबर है, बोल रहे हो, E है बराबर mc स्क्वायर, ठीक है ना। मास जो है आपका, मास आपका है 0.5 ग्राम, वो होगा 0.5 इंटू 10⁻³ kg। क्योंकि 1 ग्राम जो होता है वो होता है 10⁻³ kg, ठीक है। क्वेश्चन आया था 2020 में, तो लगाओ इसमें E निकालो। ये हो गया मास का 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू लगाओ, शाबाश, 3 इंटू 10⁸। बाहर क्या आएगा भाई, जूल्स, ठीक है, स्क्वायर, बाहर आएगा जूल्स। ये आ गया E इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 आ गया 9 इंटू 10⁻16 जूल्स, ठीक है। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये निकलेगा E इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻13 जूल्स। दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2020 नीट, ठीक है ना। चलिए, अब आपको तीनों क्वेश्चन आए जो इस साल इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन नीट में आए। यो आपने तीनों क्वेश्चन किए, कितने इजी क्वेश्चन आए थे। सो यू हैव टू, इन ऑर्डर टू क्रैक द नीट, आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे, नाउ लेट अस टुडे डिस्कस न्यूक्लियर साइज, और उसको हम न्यूक्लियर रेडियस कहते हैं, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर रेडियस। चलिए, और न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर रेडियस। आज हम न्यूक्लियर रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसी से हम न्यूक्लियर साइज को, उसी को हम न्यूक्लियर साइज भी बाद में बोलेंगे। देखो, सब हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है,
दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। These protons and neutrons, they are together named as nucleons. Nucleons. Nucleon को हम A से डिनोट करते हैं। मास नंबर जिसको हम कहते हैं, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द व्हाट? प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज व्हाट? मास नंबर। देखा गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दैट इज इट। हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जितना ज्यादा मास नंबर होगा न्यूक्लियस का, उतना उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा। जितने न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतना उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। ग्रेटर द मास नंबर, greater will be the volume of nucleus. Greater the mass number means greater the number of nucleons present in the nucleus. तो मैंने ऐसे लिखा, volume of nucleus is directly proportional to the number of nucleons present in the nucleus. Greater the number of nucleons, greater will be the volume of nucleus. Now, suppose जो मेरा nucleus है, इसकी जो radius है, suppose इसकी जो radius है वो है r, तो इस nucleus का volume किसके बराबर होगा? 4/3 pi r cube, because this nucleus is spherical. ठीक है ना? तो ये बनेगा 4/3 pi r cube is directly proportional to A. What's A? Number of nucleons present in the nucleus. R मैं ऐसे लिखूंगा, this is r cube is proportional to A. What's R? R is the radius of nucleus, या nuclear radius जिसको हम कहते हैं, nuclear radius. यहां पर चूंकि 4/3 pi जो है ये कांस्टेंट है, 4/3 pi क्या है? कांस्टेंट। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये होगा r cube is proportional to A. R में ऐसे लिखूंगा, r is proportional to A raised to power 1/3। क्यूब को क्यूब हटा दिया तो वहां 1/3 आएगा। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको ऐसे लिखेंगे, r is equal to r naught into A raised to power 1/3. Let us call this equation number first. R जो है that is equal to r naught into A raised to power 1/3. Where जो ये r naught है, this is constant of proportionality and this r naught is called nuclear unit radius. Nuclear unit radius. Nuclear unit radius. जो r naught है ये constant of proportionality है, empirical constant है, it is an empirical constant. This is called as nuclear unit radius. इसका वैल्यू हर एक न्यूक्लियर के लिए सेम होता है। This is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 15 meters. चूंकि 10 raised to power minus 15 meters होता है 1 फर्मी के बराबर। किसके बराबर? 1। जैसे 10 raised to power minus 10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 raised to power minus 15 होता है मीटर होता है बराबर 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.2 फर्मी। जो ये R naught है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ये होता है 1.2 into 10 raised to power minus 15 meters. ये जो एक्सप्रेशन 1 जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर रेडियस। ये है एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर रेडियस, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस या हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर साइज। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर रेडियस या हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज। यहां देखो इस इक्वेशन से आपको क्या निकला? बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, इजी क्वेश्चन। ये बताता है जो न्यूक्लियर रेडियस है इट डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। न्यूक्लियर रेडियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर, न्यूक्लियर साइज डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। चूंकि इसमें मास नंबर आपको अपियर हो गया इस रिलेशन में। चूंकि जो मास नंबर ए है ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। फॉर हीलियम इट इज 4,
for carbon it's 12, it is 14, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो A जो है, it is different for different nuclei, therefore nuclear radius is different for different nuclei, or nuclear size is different for different nuclei। आगे जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ेंगे, या उसको कहेंगे हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी, या हम उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चूंकि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास प्रोटॉन की मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, आपके पास न्यूट्रॉन की मास है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी जो आपका न्यूट्रॉन है ये थोड़ा सा मैसिव है देन प्रोटॉन, जस्ट यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इन दोनों की मास क्या हम बदल पाएंगे, सेम है, थोड़ा सा बड़ा है न्यूट्रॉन इससे। सपोज हमारा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कितने न्यूक्लियॉन्स है, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कुल है ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सपोज एक न्यूक्लियॉन की मास है m, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियस की मास कितनी होगी, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, m, व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, a, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे, रो होगा बराबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो होता है बराबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस किससे डिनोट करेंगे, ए से। मास ऑफ 1 न्यूक्लियन किससे डिनोट करेंगे, m से, डिवाइडेड बाय है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये हम ऐसे लिखेंगे, रो इज इक्वल मास ऑफ 1 न्यूक्लियन हम m से डिनोट करेंगे, से m। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस उसको a से डिनोट करेंगे, यानी मास नंबर से। ये हो गया m इंटू a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब, वाइल r क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। 3 को ऊपर लेंगे, ये बनेगा रो इज इक्वल टू 3ma डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू r क्यूब, ठीक है, 4 पाई इंटू r क्यूब। r आपको पता है, r होता है बराबर r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3। हाँ बाबू पता है ना, ये r होता है बराबर r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3। तो लगाओ उधर, रो किसके बराबर निकलेगा बच्चों, शाबाश, ये निकलेगा 3 टाइम्स ma डिवाइडेड बाय शाबाश 4 पाई, शाबाश, r क्यूब का वैल्यू दे दो, क्या है शाबाश, r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 3। चलो आगे, रो निकलेगा बराबर शाबाश 3 टाइम्स ma डिवाइडेड बाय 4 पाई, शाबाश, r0 क्यूब इंटू a। चूंकि देखो r0 को क्यूब बनेगा, ये बनेगा a रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 3, 3 और 3 कट गया, तो आपको क्या निकलेगा वहां पर, अरे फिर से देखो, ये बनेगा r0 क्यूब, उसके बाद a को रेज पावर क्या है 1/3 होल रेज पावर क्या बनेगा 3, 3 और 3 कट जाएगा, तो आपको क्या निकलेगा a। यहां पर ये a और ये a खत्म, तो आपको रो जो है वो निकला आपको 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब,
this is the expression for the radius, for what? For the density of nucleus या nuclear density. ये देखो, जो ये nuclear density है, ये है same. ये nuclear density जो है, it is independent of mass number. इस expression पे कहीं mass number आया, कहीं नहीं आया. तो इसका मतलब है this nuclear density is independent of mass number. Therefore, it is same for all nuclei. न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ये सेम होती है हर एक न्यूक्लियर के लिए, क्योंकि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है. इट डजंट डिपेंड अपॉन द मास नंबर. देयरफॉर दिस विल बी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर. दिस विल बी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर. ठीक है. मैं कुंते आसुशा मानूं से कोई पूछा कहते खान को क्या मैं कुंते आसुशा मानूं. चलिए, let us now calculate this nuclear density. मैंने आपको कहा this nuclear density is same for all nuclei. What is same for all nuclei? Because it is because it is independent of what? Mass number. ठीक है ना? See, we will calculate it. Rho जो है, this is 3m divided by 4 pi r naught q. What is m? M is mass of one nucleon. Either you take it of mass of proton or you take it mass of neutron. ठीक है. तो m जो है here, हमारा m जो है मैं इसको ऐसे लूंगा 1.67, ना 2 लूंगा ना 4 लूंगा, मैं लूंगा 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. जो न्यूक्लियर यूनिट रेडियस r0 है, this is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 15 meters. ठीक है बच्चों, ठीक है ना. इस इक्वेशन में दाग दो भाई. ये बनेगा रो इज इक्वल टू 3 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू जो है वो है 3.14 इंटू आर नॉट का वैल्यू जो है वो है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15. लेकिन यहाँ क्यूब है, तो यूनिट जो निकलेगा आपको वो निकलेगा केजी पर मीटर क्यूब. जरा केजी पर मीटर क्यूब क्यों है? ऊपर है मास, नीचे है वॉल्यूम. मास का यूनिट क्या है? केजी. वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब. ठीक है. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये निकलेगा आपको रो इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब. रो जो है ये निकला आपको 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब. पास कर. आपको निकला रो जो आपको निकला दैट इज 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 17 केजी मीटर क्यूब. You imagine, this is 10 raised to power 17. This is 2.3 into 1.00000. How much times? 17 times. It means जो आपकी nuclear density है, it is of the order of 10 raised to power 16 kg per meter cube. It means that the nucleus has such a large density, such a small portion, but having such a large density. ठीक है ना. जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम जो होता है, हर एक न्यूक्लियस जो होता है उसकी डेंसिटी होती है जो होती है वो होती है 10 रेज टू पावर 17 kg per meter cube, which is very large as compared to the density of an ordinary matter. Ordinary matter जो है उसकी डेंसिटी होती है 10 रेज टू पावर 3 kg per meter cube. मगर हमारा जो न्यूक्लियस है इसको इतनी बड़ी डेंसिटी होती है 10 रेज टू पावर 17 kg per meter cube. हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है that is of the order of 10 raised to power 17 kg per meter cube. Such a very high density, such a large density is always possible in neutron stars. ऊपर हमारे पास स्टार्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं उनकी भी डेंसिटी होती है कितनी? लगभग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना. This completes this question.